السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہے 7 سمندر پار کر کے سفر کر کے پاکستان پہنچے ہیں. لیکن ان کی امیزنگ بات یہ ہے کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے پاکستان میں دھڑکتا ہے. اور اس دھڑکن کے سکون کے لیے، اس دل کے سکون کے لیے وہ سب سے بہترین اور زبردست کام یہ کرتے ہیں کہ کینیڈا میں سندھ کے کلچر کے لیے، پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، تقریبات کرواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کینیڈا میں ہی رہتے ہوئے سندھ رنگ کے نام سے انہوں نے نہ صرف اس کی میزبانی کی، شو کی میزبانی کی، بلکہ اس کو پروڈیوس بھی کیا. یہاں تک بھی ان کا سفر جو ہے ختم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے 2019 میں اتنا زبردست سندھ کے حوالے سے جو میلہ کروایا تھا اور اس کے وہ اعزازی سفیر بھی رہ چکے ہیں. ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سندھ میں سندھ جو ہے ہماری سندھ اسمبلی میں ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ جو خدمات جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے سندھ کلچر کو جو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہے انڈس کینیڈین نیٹ ورک کے چیئرمین بھی ہیں، ویسے تو آئی ٹی کے پروفیشن سے بھی وابستہ ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مشہود قاضی صاحب ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا سفر تو بہت لمبا رہا کینیڈا سے بھی، اور ماشاءاللہ سے جو آپ جو ہے سندھ کے کلچر کو جس طرح سے وہاں پہ رہتے ہوئے پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ جو ہے سندھ کی، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے جب پاکستان اور واقعی سندھ کے کلچر کو آپ نے دیکھا ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے، اور وہاں کی یہ کلچر کو آپ جو وہاں لے کے جاتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ مونا. سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. دیکھیں، اس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے، جو اس کی محبت ہے، وہ ہمارے روح میں بسی ہوئی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں جہاں بھی رہوں میں تمہارا ہی ہو کے رہوں. کیا تو بات ہے. میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ ہم کینیڈا میں رہیں، اپنے بچوں کو اچھی کوالٹی آف لائف دے سکیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری دل آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، بالکل سندھ کے ایسا ہے. ساتھ دھڑکتی ہے. اور جب پاکستان خوش ہوتا ہے، جب سندھ خوش ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. جب یہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے دل میں بھی وہی تکلیف ہوتی ہے. شاید زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہوگی جتنی کہ یہاں کے رہنے والوں کو ہوتی ہوگی. آئی ایگری. میں ناظرین یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ریئل پاکستانی کو کریڈٹ جاتا ہے مشہور قاضی صاحب کو کہ کینیڈا میں باقاعدہ آفیشلی طور پہ سندھ کلچر کا جو ڈے ہے وہ باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ لوگ جو ان کی کمیونٹی ہے وہ آفیشلی طور پہ ان کو جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت بڑی بات ہے جو میں نے اپنی ناظرین کو بتائی ہے. نہیں، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ایکچولی پوری دنیا میں البرٹا، جو پروونس آف البرٹا ہے، وہ واحد صوبہ ہے دنیا میں جس نے سندھی کلچر ڈے کو آفیشیل لیول کے اوپر ریکگنیشن دی ہے. اور ہم نے اور کچھ دوستوں نے مل کے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے کلچر کو ہم پروموٹ کریں. کیونکہ جب ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کلچر کو جتنی زیادہ پروموشن ملے. اور آپ کو پتہ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ 7,000 سال پرانی تہذیب ہے. دنیا کی جو موسٹ اینشینٹ سویلائزیشنس ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے اس کلچر کو، اس سویلائزیشن کو زیادہ پروموٹ کریں. سو وی ٹک اپ ٹو دا پروونس آف البرٹا، جو ان کی گورنمنٹ تھی، اینڈ تھینکس ٹو دا البرٹن گورنمنٹ کہ انہوں نے ہماری پلی کو سنا اور انہوں نے فرسٹ سنڈے آف ڈسمبر ان 2018 انہوں نے آفیشیلی ریکگنائز کیا ایز سندھی کلچر ڈے. اور جو پریمیئر آف البرٹا کی کیلگری میں آفس تھی، پریمیئر یہاں ہم ان کو چیف منسٹرز کہتے ہیں، وہاں پر پریمیئر کہتے ہیں، تو ان کی آفس میں جو منسٹر آف کلچر ہیں اور دوسرے منسٹرز ہیں، ایم پیز ہیں، ایم پی پیز ہیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے آفیشیل پروگرام رکھا جس میں انہوں نے ریکگنیشن سرٹیفکیٹ ہمیں دیا کہ ہم سندھی کلچر کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز آفیشیل سندھی لینگویج ڈے آن December 7th آئی بلیو. اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں اور کچھ دوستوں کو جو ہے وہ ایمبیسیڈر آف سندھی کلچر آف انڈس ویلی سویلائزیشن کا اعزاز دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک فارن
कंट्री कि जिसको सिंधी कल्चर का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। मशहूर साहब, मैं यहाँ पे एक बात इसलिए भी जोड़ना चाहूँगी कि आप इमेजिन करें वहाँ पे कितनी दीगर कम्युनिटीज़ होती होंगी, डिफरेंट कल्चर्स होते होंगे, दीगर जो है ममालिक से भी लोग रहते होंगे, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि वहाँ पे आपने रहते हुए सिंध के कल्चर को रखते हुए और अपनी कम्युनिटी की भी जज्बात होते हैं ना कि भाई हम तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रहते हैं, पाकिस्तान उस तरह से नहीं आना होता, सिंध उस तरह से नहीं जा सकते, वहाँ पे रहते हुए आपने एक चीज़ को अलाइव कर लिया, अपने कल्चर को, सिंधी कल्चर को अलाइव कर लिया। वैसे जब ये चीज़ हुई तो फिर क्या फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसी हवाले को रखते फिर यहाँ पे भी आप लोगों को भी अप्रिसिएशन मिली, जिस तरह से सिंध असेंबली ने आपको इनवाइट भी किया था इस चीज़ को भी कि ये आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो क्या जब हो गया फिर क्या आपके जज्बात ऐसे साथ थे? मेरे ख्याल में वी वर ऑल वेरी इमोशनल ऑन दैट डे, और जितनी भी कम्युनिटी हमारी आई थी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल शोड अप इन दैट ऑफिशियल प्रोग्राम एंड एवरीबॉडी वाज इमोशनली चार्ज्ड, क्योंकि ये एक यूनिक किस्म का मौका था कि जो पाकिस्तान में भी कभी इस तरह से नहीं हुआ था, और पाकिस्तान से बाहर तो वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन हमने वो जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया। प्रोग्राम हुआ, रिकग्निशन मिली, लोग बड़े जज्बाती थे, बहुत दुनिया भर से हमें जो है वो कांग्रेचुलेटरी नोट्स आए, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस मिली कि हम अपने कल्चर को इस तरह से वो प्रोमोट जो कर बच्चे सकते रहते हैं। पाकिस्तान के, और मैंने देखा कि उसको देखते हुए फिर यूएस के बहुत सारे शहरों में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कल्चरल प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया। तो आई थिंक कि दिस बिकेम अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ अदर फोक्स कि हाँ, अगर यहाँ पर हो सकता है अल्बर्टा में, तो वाई नॉट एल्सवेयर। और दूसरा जो हमने काम किया, अगेन क्रेडिट गोज टू अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स आल्सो, कि हमने वहाँ पर जो कनाडा डे होता है, जुलाई 1 इज़ ऑफिशियली कनाडा डे, जैसे हम 14 अगस्त को यौम पाकिस्तान मनाते हैं, तो वहाँ पर जुलाई 1 कनाडा डे होता है। वहाँ पर हमने एक कल्चरल फ्लोट निकाला, और वो कोई 2-2.5 किलोमीटर की एक स्ट्रिप होती है जिस पे हज़ारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं। उसमें हमने फ्लोट निकाला, अगेन इंडस वैली कल्चर को प्रमोट किया, सिंधी कल्चर को प्रमोट किया, तो ताकि लोगों को हम बता सकें कि हु वी आर और हमारी तहज़ीब कितनी पुरानी है। और न सिर्फ ये कि हमारी तहज़ीब कितनी पुरानी है, बल्कि हमारी तहज़ीब ने हमें क्या वैल्यूज़ सिखाई हैं। बिल्कुल असल इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा कि जो लोकल कैनेडियंस थे या जो दूसरी कौमियत के लोग थे, वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे उस चीज़ को, एंड दे वर अमेज्ड कि एक ऐसी सिविलाइजेशन भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो इतनी एंशंट है। तो फिर लोगों ने हमसे आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू किया कि भाई ये सिंधी कल्चर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, आपके कल्चर में क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो दैट गेव अस एन आइडिया कि हम क्यों न अपनी इंडस वैली की एग्जीबिशंस करें, हम लोगों को अपने कल्चरल स्टॉल्स लगा के बता सकें कि दिस इज़ हाउ वी आर, दिस इज़ व्हाट आर लिविंग इज़। तो फिर उस चीज़ को नज़र में रखते हुए 2019 में हमने एक बहुत बड़ी कल्चरल एग्जीबिशन की थी, जिसमें इंडस वैली के सारे कल्चर्स को हमने प्रमोट किया था, क्योंकि वी बिलीव कि जो पूरे पाकिस्तान के कल्चर्स हैं उनको हम ओन करते हैं, सारे हमारे अपने कल्चर्स हैं। तो उसमें कश्मीर के भी स्टॉल्स थे, केपीके के तो थे, वहाँ तो पंजाब के पाकिस्तान से डेलीगेशंस आए थे वहाँ पे? नहीं, हमने लोकली सब वहाँ पर अरेंज अच्छा, किया था। very वी nice. गॉट गुड वॉलंटियर्स, और लोगों के पास कल्चरल आर्टिफैक्ट्स मौजूद होते हैं, और बहुत जगहों से हमने मंगवा के एक अच्छी एग्जीबिशन की, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा। और न सिर्फ ये कि हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के, बल्कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, इंडियंस हैं, फिलिपिनोज़ हैं, चाइनीज़ हैं, बॉर्न कैनेडियंस जो हैं, वो सब उस एग्जीबिशन में आए, दे अप्रिशिएटेड। वैसे एक ज़माना होता था कि हम इंट्रोड्यूस करते थे ये सिंधी अजरक है सिंध से। अब माशाल्लाह हम देखते हैं कि लोगों को पता है, हम गोरों को अपना ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से कई वहाँ पे हम जाते हैं, मैं देखती हूँ उनको पहले से पता था, वी That is नो true. दिस इज़ फ्रॉम सिंध, और इस तरह से। मतलब इसकी भी एक वजह ये है कि इस पे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, दीगर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया है, तो अब सिंधी अजरक जो है वो अब लोगों को, जो दीगर जो वहाँ रहते हैं, उनको पता है कि भाई उनको पता है कि ये जो है इसका ताल्लुक सिंध से है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं वहाँ पर जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो स्टैम्पीड के इवेंट में कैलगरी आए हुए थे, एंड आई गॉट अ चांस कि मैं उनको अजरक प्रेजेंट कर सकूं, एंड ही वाज वेरी हैप्पी रिसीविंग दैट अजरक। और सिमिलरली हमारी जो उस वक्त की प्रीमियर थी रैचल नॉटली, उनको मैंने अजरक का तोहफ़ा दिया था, और
उसने पूरे प्रोग्राम के दौरान वो अजरक पहनी हुई थी। न सिर्फ ये बल्कि बाद में एक ऐसा कोई दूसरा प्रोग्राम हुआ उसमें भी वो अजरक पहन के आई थी एंड शी टोल्ड मी कि उसने संभाल के उन्होंने रखी हुई थी एंड शी स्पेशली टुक इट फॉर दैट प्रोग्राम। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे इस किस्म के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को जो है वो रिकग्निशन मिलती है, लोग पसंद करते हैं, पहनते हैं, पूछते हैं। हमारी प्रीमियर ने मुझसे डिटेल में पूछा था कि वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये चादर जो आप शॉल मुझे जो दे रहे हैं वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और ये किस तरह से बनी हुई। उनको फिर बताया कि ये किस तरह से हाथ से हमारे लोग मेहनत करते हैं, बनाते हैं, वो ठप्पे लगते हैं और फिर वो उसको पानी और रंगों के इम्तजाज से जो है वो बनाते हैं। तो शी वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। अच्छा, जिस तरह से हम आपसे बात करें, माशाल्लाह से आपका एक ज़बरदस्त कैरियर भी रहा और कामयाब इंसान भी हैं आप, कामयाब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम आपको देखें तो आपने जो बेसिक आपकी जो एजुकेशन है, प्राइमरी की जो एजुकेशन है, आपने सिंध के एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से, थरपारकर का एक छोटा सा स्कूल था, ज़रा आप बता दीजिएगा किस तरह का स्कूल था, वहाँ से आपने तालीम हासिल की है और माशाल्लाह से देखिए अब आईटी के इस प्रोफेशन में आपने अपना नाम भी कमाया और काम भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप शेयर करें वो किस तरह का स्कूल था, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं ना, आमतौर पे कहते हैं कि नहीं स्कूल बड़े होते छोटे होते, इसे डजेंट मैटर। बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चा कहीं से भी पढ़ाओ और वो अगर उसके अंदर जज्बा है, वो करना चाहता है, और पेरेंट्स, ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स की भी, तो कर सकता है। बिल्कुल सही है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के एक बहुत छोटे से शहर डीपलो से है और मैंने ग्रेड 7 तक वहाँ के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से एजुकेशन ली थी, जो टिपिकल हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, बेंचेस वाले और चाक और स्लेट और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिस तरह से पढ़ाते हैं आज भी वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। उन्हीं स्कूलों में हम पढ़े थे। तो जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज़। अगर आपके अंदर विल है, कमिटमेंट है, जुस्तजू है, आगे बढ़ने की सोच है और अल्लाह की मेहरबानी ऑब्वियसली, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता, तो आप इतने छोटे से प्राइमरी स्कूल से निकल के भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में गया, फिर मेहरान यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स में इंजीनियरिंग की एंड आई वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। जब यहाँ पर कंप्यूटर्स की बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, कुदरतन मुझे किसी तरह से मौका मिला और मैं कंप्यूटर सिस्टम्स की इस फील्ड में आया एंड आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी उस दौर में लोगों को पता भी नहीं था। मुझे याद है एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि अब तुम क्या बनोगे, मैंने कहा मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। उसने कहा तुम इरिगेशन के इंजीनियर कब बनोगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इरिगेशन का इंजीनियर नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी सोच यही थी कि इंजीनियर का मतलब ये होता है कि इरिगेशन का इंजीनियर हो, वाटर कोर्सेज के ऊपर काम कर रहा हो, पानी दे रहा हो, पानी नहीं दे रहा हो। देखिए मशहूर साहब, आप जितनी पुरानी बात बता रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब हम स्कूल जाना शुरू हुए थे तो वो कंप्यूटर का एक जो है वो एक सब्जेक्ट वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारे ज़माने की आपको मैं बात बता रही हूँ, वो शुरू में हम गेम्स वेम्स खेलते थे और बेसिक हम पढ़ा। तो अगर आप सोचे जो आप हमसे जो बात शेयर करा रहे हो, कितनी पुरानी बात होगी। हाँ, मैं आपको मिड-80s की बात बता रहा हूँ। जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर सिस्टम्स मेन फ्रेम मशीन लगी हुई थी IBM 4331 की, वो सब दुनिया में सिर्फ 2 जगह पर थी, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन US और दूसरी मेहरान यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी जो मेमोरी थी वो 512 किलोबाइट की थी। आज आप किसी बच्चे को भी कहें कि 512 के, तो वो आपके कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन उनके ऊपर हमने फोर्ट्रान के प्रोग्राम्स भी लिखे, कोबोल के प्रोग्राम्स भी लिखे। कंपाइलेशन में 1-1 घंटा लगता था, तब वो कंपाइल होकर रिजल्ट देता था प्रोग्राम। तो वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज इन लास्ट 30-40 years. द वर्ल्ड वॉज नॉट एज इट इज़ टुडे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ज़माने की चेंज है उसके साथ कूप अप कर रहे हैं एंड अल्लाह का बड़ा करम है कि कनाडा में भी जो है वो एक अच्छा आईटी का कैरियर चला रहे हैं और मैंने वहाँ पर MBA भी की, PhD भी की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में। और अपार्ट फ्राम द सोशल वर्क दैट आई एम डूइंग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि और मेरा ईमान है कि अगर आपके थोड़े बहुत एफर्ट के साथ अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में भी फ़र्क आ जाता है ना, तो आप कम से कम जब खुदा के सामने हाजिर होंगे तो आपके दिल में एक तसल्ली होगी कि यार आई एटलीस्ट ट्राइड
to do something for humanity. अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात को जोड़ती हुई चलूँ कि बेसिकली हम किसी की ज़िंदगी में आसानी कर रहे होते हैं तो हम उसकी ज़िंदगी में नहीं, अपनी ज़िंदगी में आसानी That is पैदा true. कर रहे That होते is हैं। true. और यहाँ पे मैं इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से बात भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप जितना काम वहाँ पे कनाडा में रहते हुए इसकी हिस्ट्री पे जो काम कर रहे हैं, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें भी नहीं पता इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से, जो हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को इस तरह से कैसे पता होगा। तो आप उस हवाले से बताएं कि क्यों इतने आप फोकस्ड हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आप उसकी ज़रूरत जो है कनाडा में फील करते हैं और उसको वहाँ इतना प्रमोट करते हैं। मैं जब वहाँ पर शुरू में गया था इन लेट 90s, तो वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें जो है ना वो एज अ नेशन एक रिकग्निशन इस लेवल पे के ऊपर तो थी ज़रूर कि हाँ दिस इज़ अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं थी। लोगों को पता नहीं था। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते थे जो हमसे पूछते थे कि पाकिस्तान है कहाँ पर, टू दैट ऐसा ही है, ऐसा ही टू है। दैट एक्सटेंट। तो मुझे फील हुआ कि हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस हो कि हु वी आर, व्हाट वैल्यूज़ वी आर ब्रिंगिंग इन, और हम किस तरह से इस मुआशरे में अपने कदम जमा सकते हैं और किस तरह से अपने कौम के लिए रिस्पेक्ट का बायस बन सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो आप अपनी रिस्पेक्ट अपने प्रोफेशनल कैरियर से या अपने कंडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात तो तब है ना कि जब आपको कोई देखे तो कहे कि नहीं दिस इज़ ही इज़ अ प्राउड पाकिस्तानी, तो आपकी कंट्री लेवल के ऊपर जो है ना वो रिकग्निशन होती है, आपकी कंट्री को लोग रिकग्नाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आमतौर पर यही होता है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी कोई अच्छी बात करता है कहते हैं सब पाकिस्तानियों ने अच्छी बात की, कोई गलत बात है तो सब पाकिस्तानी तो सब ऐसे पाकिस्तानी, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही अगर होता है। कोई खराबी होती है तो वही कहते हैं ना सब पाकिस्तानी। कि दीज पाकिस्तानीज आर डूइंग इट। एक को नहीं कहते, सबको कहते हैं। हाँ। अच्छा मशहूर साहब, क्योंकि जैसे से आपने खिदमत की बात की, ह्यूमैनिटी के काम के लिए भी बात की, हम देखते हैं कि बड़ा एक्टिवली इस तरफ भी आपका बड़ा ध्यान है। तो अब तक इसमें क्या आपका एजेंडा है, क्या इसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एवरीवन नीड्स हेल्प, जो भी जिस तरह से टाइम चल रहा है, तो आपकी किस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते काम करने के लिहाज से, इंसानियत को जो जज्बा आपके अंदर है? देखिए, दो चीज़ों के ऊपर जो ऑन द सोशल साइड मेरा फोकस रहा है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लिव फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नाम से, उसको 2016 में बनाया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि विद इन द अल्बर्टा प्रोविंस मैं कोशिश करूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने की, क्योंकि स्पेशली जो इमिग्रेंट्स वहाँ पर आते हैं वो एक टिपिकल माइंड सेट लेकर आते हैं कि औरतों ने घर पे खाना बनाना है, बच्चों को पालना है, अच्छा, और मर्द कमाएंगे। जो अभी भी वहाँ हमारी पे है, इस तरह से होता है। जो हमारे इमिग्रेंट कम्युनिटी के मोस्टली लोग यही सोच रखते हैं। और क्या हुआ कि जब ये 2015 और ये रिसेशन का टाइम आया और बहुत से लोगों की जॉब्स छूट गई, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस को उसने जन्म दिया। इसलिए कि जब घर में फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हो जाता है। दुनिया भर में ये चीज़ हमने ये देखी। सारी चीज़ें हुई, और चाइल्ड अब्यूज़ भी हुआ। सीनियर्स जो पेरेंट्स थे वो बड़ा उनको टफ टाइम मिला। तो आई थॉट कि इट्स बहुत से अबाउट लोग टाइम। जॉबलेस भी हो गए थे एग्जैक्टली, और लोगों का कसूर भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, हमें कुछ ऐसी अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए कि हम लोगों को बता सकें कि वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। आप अपनी औरतों को घर पे न बिठा के रखें, उनको मौका फराहम करें, उनको एजुकेट करें, उनको जॉब मार्केट में भेजें, उनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि वो भी एक मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। एक तो कनाडा की ओवरऑल इकानमी में उनका थोड़ा सा हाथ हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी जो फैमिली, हैप्पी फैमिली लिविंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वो आपकी पार्टनर बन जाएंगे। अच्छा मशहूर साहब, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगी। वैसे हम लोग अपने मुल्क में रहते बड़ा तनकीद करते हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। मैं यहाँ पे भी एक ऐसी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही, वहाँ पे भी ख़वातीन के मसाइल होते हैं। ये बात हम दूसरों को बताने की करते हैं कि दुनिया भर में मसाइल होते हैं, डेवलप कंट्रीज़ के भी होते हैं। अगर पाकिस्तान में भी कोई चीज़ खुदा ना खास्ता हो जाती है तो इतना फील ना किया करें, होती है, क्योंकि हर एक कंट्री में अपने मुख्तलिफ तरह के राइट्स के भी होते हैं, ख़वातीन के भी होते हैं, और भी दीगर जॉब के भी होते हैं। क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ यही होता है कि हम फ़ौरन जो है उस एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी आर नो डिफरेंट। हाँ, हमारे पास Exactly, डोमेस्टिक हर वायलेंस जगह और पे इस है, किस्म के दुनिया भर में। केसेस कम होंगे, पाकिस्तान से कम होंगे, उनकी इंटेंसिटी निस्बतन कम होगी, लेकिन ये है कि केसेस तो होते हैं, और उनको उनका सदेबाद भी करना होता है। तो इस हवाले से फिर हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया, अवेयरनेस की, रोल ऑफ मैन इन वुमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रेन की साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है जब डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं।
तो उसके ऊपर हमने बड़े तो इसका सेशंस इम्पैक्ट किए। पड़ा, क्या हुआ, किस तरह? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। हमने एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था एंड दैट सर्वे गेव अस सम एक्सीलेंट रिजल्ट्स। जो हमने एक अपने महदूद पैमाने के ऊपर सर्वे कराया था कि जिन जिन कम्युनिटीज़ को, जिन जिन लोगों को हमने टारगेट किया था, वी फिगर्ड आउट कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को, अपनी जो फीमेल पार्टनर्स थी उनको मोटिवेट किया कि वो जॉब पे जाएं और एंटरप्रेन्योर या घर पे बैठ के। अब बहुत सारे लोग आपको अब कनाडा में, कैलगरी में मिसाल के तौर पे नज़र आएंगे, आपको एड्स नज़र आती हैं कि हम आपको घर पे खाना बना के पहुंचा देंगे। तो ये काम है जो आसानी के साथ हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और बहुत सारी औरतें हमारी कर रही हैं। डायरेक्शन देनी पड़ती है। लेकिन ये है कि आप कम से कम एक लाइट आपको जलानी होती है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं, लेकिन ये है कि किसी न किसी को आगे बढ़ के कुछ कहना थोड़ा पड़ता है। यहाँ पे कि थोड़ा इनकरेज भी करना पड़ता है कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं। वो कहते हैं अच्छा फिर हम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और फिर पाकिस्तान की हद तक या सिंध की हद तक जो है वो भी मेरा फोकस यही रहा है कि एम्पावरमेंट। मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें लोगों को भीख मांगना नहीं सिखानी चाहिए। तो ये क्या बात है, क्या ही अच्छी बात हो कि यही बात आप मैसेज में हमारे नाजरीन के लिए भी दे सकें। जाते जाते कोई मैसेज जो आप दे रहे हैं, मतलब बात ही करें तो मैं चाहूँगी प्रॉपर एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए आप दें। नहीं, मेरा बिल्कुल मैं तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि लोगों को भीख मांगना न सिखाइए। लोगों को 5,000 10,000 रुपये दे के आप उस चीज़ का उनको आदी न बनाइए। आप उनको एम्पावर कीजिए। आप उनको भले 8,000 रुपये का एक रेढ़ा लेके दे दें, उनको सब्जियां लेके दे दें कि आप जाके रेढ़ा चलाओ और उस रेढ़े से कुछ ना कुछ कमा लो। आप एक छोटा सा टक शॉप खोल लें, आप कोई छोटा सा काम कर दें, सिलाई मशीन दे दें। किसी बेवा को आपने सिलाई मशीन दे दी, वो अपने घर का काम चलाना शुरू कर देगी। लेकिन एम्पावर करें लोगों को ताकि पैसे से पैसा जनरेट हो और आपकी जो फैमिली जो लाइफ है, एक तो वो बैलेंस्ड हो और दूसरा ये कि आपके अंदर जो ग्रीड होती है ना कि मुझे 10,000 इधर से मिले, 15,000 उधर से मिले, आप इस ग्रीड से निकल जाएंगे। जब आप अपना रोज़गार बनाना शुरू करेंगे तो जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, जो सुकून की नींद आप सो सकते हैं, उस सुकून की नींद का कोई नेमत बदल नहीं है। बेशक ऐसा ही। और थैंक यू मशहूर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। आई होप हमारे नाजरीन तक वो पहुंचने के बाद समझ भी उसी तरह से समझे भी और उसी तरह से अमल भी करें। प्लीज़ जहां भी जिधर भी रहें पाकिस्तान के लिए काम करें और ज़बरदस्त काम करें और पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।